Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in this video we are going to start a new chapter, economics, second chapter, that is chapter 16, the nature of Indian economy. Okay. First of all, I would like to tell you the reasons for being late for this chapter. In the PDF I have, there is no chapter 16 in that PDF. So I have asked to one of my student to send this chapter's PDF to me, and she has sent me. So I would like to thank you to my student Simran. Thank you for giving me this chapter. So without any delay, let's start the chapter. In order to understand the Indian economy, we had classified it into three sectors: agriculture and allied industries and services. We can understand the changes that have taken place in the Indian economy in the last 60 years on the basis of this classification. In the initial stages of development of an economy, agricultural and allied sector have been the most important sector. The kings and feudal lords were able to establish their own armies due to the taxes imposed on the produce from the agricultural sector. At the same time, cities grew dependent on agricultural production, which were populated with large number of traders and craftsmen. As markets spread and goods were exchanged, more people started working in the industry and service sectors. In spite of these changes, agriculture still remained the most important sector in society from the perspective of production and livelihood. देखिए, अगर हमको इंडियन इकोनॉमी को समझना है, जो कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में क्लासिफाइड है। एक है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड इंडस्ट्री, सर्विसेज इंडस्ट्रीज, ठीक है? इंडस्ट्रीज एक तो आपका इंडस्ट्री आ जाता है और दूसरा जो आता है वो आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है, ठीक है? एग्रीकल्चरल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज सेक्टर, और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। अगर हमको देखना है, अगर हमको समझना है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं इन तीनों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, तो सबसे पहले हम लोगों को जो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चरल का, अलाइड सेक्टर का, सब सबसे पहले तो हम लोग को इनिशियल स्टेजेस में अगर डेवलपमेंट को समझना है तो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर, उसको समझने की ज़रूरत है। जो राजा और फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मीज जो थी वो स्टैब्लिश की थी और वहाँ पर टैक्स इम्पोज वो करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। उसी समय क्या हुआ, यहाँ पर सिटीज़ जो थी वो ग्रू हुई, सिटीज़ बढ़ने लग गई, और सब उस वक्त भी लोग जो थे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ही क्या थे, डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे सिटीज़ जो थी, जो ट्रेडर्स बढ़ते गए, क्राफ्ट्समैन बढ़ते गए, तो वहाँ पर मार्केट जो था वो बहुत बड़ा होने लगा और सामान के एक्सचेंज में उनको सामान जो थे वो दिया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप की। जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप हुई, फिर आपका सर्विस सेक्टर आया। बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है हमारी सोसाइटी में माना जाता है, क्योंकि ये इसके प्रोडक्शन से, और इसका प्रोडक्शन और लाइवलीहुड जो है वो क्या है, लाइवलीहुड और प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है आज भी। After the Industrial Revolution, a new system of manufacturing spread throughout the developed countries. Factories were now being set up for the agricultural manufacturing of goods. A large number of people who earlier worked in the agricultural farm now started working in factories. People were now consuming factory produced low cost goods. Gradually, industry sector become most important sector for large scale production and sources of livelihood. We will read about how we will read more about this in the history chapters, ठीक है? देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही क्या हुआ, बढ़ने लगा, तो एक नई नई जो सिस्टम थी मैन्युफैक्चरिंग की वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और कंट्रीज जो थी, डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, उनके पास में ये सारे मैन्युफैक्चरिंग जो थे वो स्प्रेड होने लगे। फैक्ट्रीज जो थी वो अब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रही थी, और बहुत सारे लार्ज नंबर में जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल फार्म्स में जो वर्क कर रहे थे उस वक्त पे, उन्होंने अब फैक्ट्रीज में जाकर काम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर जो लोग थे वो फैक्ट्री से जो प्रोड्यूस गुड हो रहा है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे थे। धीरे धीरे इंडस्ट्री सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया था
लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से और यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की वजह से। अब यहाँ पर इसके बारे में हम अपने हिस्ट्री चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द डेवलप्ड कंट्रीज द हाईलाइट अबाउट दिस चेंजेस was that production as well as the sources of livelihood changed simultaneously. Lesser number of people worked in the agricultural sector and the number of people working in the industries increased. From the historical perspective, this change has always happened simultaneously in production and livelihood. Is there a similar pattern of change in India or it is different? We will discuss this further in this chapter. ठीक है, देखिए जब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो हाईलाइट पॉइंट है, मींस जो चेंजेस वहां पर उनको देखने हैं, वो है आपका प्रोडक्शन में और साथ में उनके उनके जो चेंजेस हुए हैं लाइवलीहुड में, जो चेंजेस हुए हैं उस पर, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें क्या होता है, जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको प्रोडक्शन पे और साथ में उनके लाइवलीहुड में भी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। कम कम लेसर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो कम बहुत ही कम लोग क्या करने लगे अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे वर्क करने लगे और साथ में जो लोग थे जो कि इंडस्ट्रीज पे वर्क कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो चेंज था वो हमेशा होते रहता है, धीरे हर कुछ टाइम बाद क्या होता है, चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन में और उनकी लाइवलीहुड में। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम अपना चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री where more than half the population is still dependent on agriculture. At the time of independence, around 72% of the people were employed in the agricultural sector. At the time, agricultural sector contributed around 55% of the gross domestic product. 60 years later, even today, agriculture is the primary source of livelihood for many years. Agricultural and allied sectors such as dairy production, fishery, and forestry provides livelihood to 53% of the people. Even then, today this sector contributes to merely 15% of the gross domestic product. देखिए, इंडिया जो है वो क्या है, आपका डेवलपिंग कंट्री में आता है और यहाँ की आज भी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% जो लोग थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही एम्प्लॉयड थे और आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पे भी करीब 55% जो लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 55% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर ही क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। 60 साल पहले और आज भी एग्रीकल्चर जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का बहुत सारे लोगों के लिए। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जैसे कि आपका डेयरी प्रोडक्शन हो गया, फिशरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सभी जो है वो बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड देते हैं। करीब 53% जो लोग हैं वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से ही अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। आज भी ये सेक्टर जो है वो करीब 15% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट देखिए, even though the percentage contribution of agricultural sectors in the gross domestic product of India has decreased in the last 60 years, large number of people still don't find employment in industry or service sector. Therefore, these people are still dependent upon agriculture for their livelihood. If some of these people work in any other sector rather than agricultural, it will not impact the overall agricultural production. That is, there will not be any decrease in the total agricultural production. If there are more people than are required in any sector of an economy, it leads to disguised unemployment. Let us understand disguised unemployment through the following example. देखिए, आज जो परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन का एग्रीकल्चरल सेक्टर का, जो हमारे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है पिछले 60 सालों में। बहुत सारे लोग जो हैं जो कि एग्रीकल्चर किया करते थे पहले, वो अब इंडस्ट्री में या फिर सर्विस सेक्टर में जाने लगे हैं। इस वजह से जो लोग हैं वो, लेकिन लोग आज भी क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, खाने पीने के लिए क्या है, आज भी एग्रीकल्चर की हमको ज़रूरत है। अगर कोई भी सेक्टर जो है, जिस एग्रीकल्चर के अलावा कोई भी सेक्टर में अगर ज़्यादा लोग जाने लगेंगे तो एग्रीकल्चर में क्या पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, हमको डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो कोई भी सेक्टर पे, ठीक है, किसी भी सेक्टर पे
जाने से, ठीक है, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं, इंडस्ट्री के सॉरी एग्रीकल्चर के अलावा अगर आप किसी भी सेक्टर पे जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे आपको डिक्रीज देखने को मिल सकता है। इमेजिन, ठीक है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, देखते हैं। Imagine that there are 6 adult members in a farmer family and they have only 4 acres of land. These 6 people work in the farm and produce 40 quintals of paddy. Two of these members get employed in another sector and leave the agriculture. Now 4 people work on the same farm to produce 40 quintals of paddy. Therefore, the agricultural productivity of these 2 members was in fact zero. Their their going into another sector did not impact the total agricultural production. The presence of more than required number of people for this agriculture work shows disguised unemployment. In fact, their away going to work elsewhere benefited their family because of addition income from this 2 members. As a result, this would increase the total income of the farmer family. We will now look at the pie chart given below to understand the contribution of Indian population of the gross domestic product. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको बोल रहा है एक एग्जांपल के तौर पे, इमेजिन करिए कि आपके पास 6 अडल्ट मेंबर है किसी एक फार्मर फैमिली में और उनके पास में 4 एकड़ लैंड है। अब उन 6 लोगों में से, अब वो लोग 6 लोग जब वर्क करते हैं तो करीब 40 क्विंटल पैडी जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब उनमें से 2 की क्या लग गई आपका, वो दूसरे सेक्टर पे चले गए, उनकी उनकी दूसरे सेक्टर पे क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए और एग्रीकल्चर को उन्होंने छोड़ दिया। अब जो 4 लोग हैं वो सेम उसी फार्म पे क्या करेंगे, 40 क्विंटल्स पैडी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 मेंबर, अगर 2 मेंबर्स के जाने से भी क्या हो रही है, उतनी अफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर वो दूसरे सेक्टर पे जाते हैं तो उनका जो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बजाय जब वो दूसरे सेक्टर पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उनकी फैमिली को क्या हो रहा है, अदर इनकम के सोर्सेस हो रहे हैं और उनकी फैमिली यहाँ पर बेनिफिट हो रही है, उनके पास में एक एडिशनल इनकम सोर्स वहाँ पर उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से जो टोटल इनकम है उस फार्मर फैमिली की वो बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चरल सेक्टर। थैंक यू।